नमस्कार। रोज की तरह हम हैं हाजिर आसनसोल टाइम्स में। आपके सामने लेकर आए हैं आसनसोल और आसपास के क्षेत्रों की कुछ महत्वपूर्ण खबरों की तरफ बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले हर इंसान का सपना होता है एक अदद आशियाना, लेकिन आज के इस दौर में यह सपना बहुतों के लिए सपना बन के ही रह जाता है। लेकिन अब आपके शहर आसनसोल में ही आपका ये सपना पूरा हो सकता है। राष्ट्रीय राजमार्ग 2 के निकट मां घाघर बुढ़ी मंदिर के समीप अनंता रेसिडेंसी ने आपके सपने को सच करने का बीड़ा उठाया है। बेहद वाजिब कीमतों पर सुरक्षित माहौल में आपको मिल जाएगा अपने सपनों का आशियाना। बेहद मनोरम प्राकृतिक माहौल में अनंता रेसिडेंसी में प्रकृति की गोद में आपको मकान नहीं, आशियाना मिलेगा। यहाँ से बस स्टैंड, स्कूल, रेलवे स्टेशन, बाजार, अस्पताल सभी बेहद नज़दीक होने से यहाँ रहने वाले लोगों को मिलेगी हर प्रकार की सुविधा। तो फिर देर किस बात की, आज ही चले आइए अनंता रेसिडेंसी और पाइए अपने सपनों का आशियाना। मोबाइल नंबर 9933121270 और 7076368674। Midwest Hospital and Medical Institute Private Limited, भगत सिंह मोड़, आसनसोल। एडीडीए चेयरमैन तापस बनर्जी ने आज अपने कार्यालय कक्ष में एक संवाददाता सम्मेलन किया। उन्होंने बताया कि आसनसोल और दुर्गापुर में हाईवे के किनारे ऐसी बहुत सी कंपनियां बन चुकी हैं जो घरों का निर्माण कर रही हैं। उन्होंने कहा कि ये डेवलपर एडीडीए से अनुमति लिए बिना ही ये काम कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि दुर्गापुर में ऐसे 23 डेवलपर हैं, जबकि आसनसोल में ऐसे 24 डेवलपर हैं। इन सभी कंपनियों को कारण दर्शाने का नोटिस जारी किया गया है। इनमें से बहुत सी कंपनियों को दूसरी बार कारण बताओ नोटिस दिया गया है। उन्होंने कहा कि ये कंपनियां एक गोरख धंधा चलाती हैं, जिसके कारण लोगों को नुकसान झेलना पड़ता है। বলছি আসানসোল দুর্গাপুর শিল্পাঞ্চলে আমরা ইদানিং লক্ষ্য করছি 6 মাস ধরে যে জিটি হাইওয়ের ধারে বা বিভিন্ন জায়গায় কুলটি, বারাবণী, আসানসোল, দুর্গাপুর বিভিন্ন জায়গায় যেতে আসতে প্রচুর জায়গাকে ডেভেলপ করে কোনো নাম দিয়ে, মানে ডেভেলপের নাম দিয়ে ওখানে ফ্ল্যাট বুকিংয়ের জন্য ফ্ল্যাগ ট্যাগ, বড় বড় ফ্ল্যাগ, বিভিন্ন রঙের ফ্ল্যাগ ট্যাগে আহ্বান করা হচ্ছে এবং কোনোটাই মানে তার মধ্যে বহু সংখ্যক যেগুলো আমরা লিস্ট করেছি তারা এডিডির কাছে এনওসি নিচ্ছেন না। এডিডির কাছে এনওসি নেওয়াটা কিন্তু বাধ্যতামূলক। টাউন অ্যান্ড কান্ট্রি প্ল্যান অ্যাক্ট অনুযায়ী যে কোনো রেসিডেন্সিয়াল, যে কোনো কমার্শিয়াল, যে কোনো ইন্ডাস্ট্রিয়াল কোনো কনস্ট্রাকশন করতে গেলে এডিডির কাছে এনওসি প্রথমে নিতে হবে। আমরা সেইভাবে সার্ভে করে প্রায় 24টা আপাতত আমরা এজেন্সি পেয়েছি যাদেরকে আমরা শোকজ করেছি। তার মধ্যে কিছু এজেন্সিকে 2বার করা হয়েছে, কিছু এজেন্সিকে 1বার করা হয়েছে। প্রথমবার করা হয়েছে, প্রথমবার 14 জনকে করা হয়েছে, আবার 14 জনকে রিপিট করা হয়েছে, তারপর আবার 10 জনকে করা হয়েছে। দুর্গাপুরে এই সংখ্যাটা ওই 23-24-এর মতো এবং এখানে আমাদের 24টার মতো আপাতত আমরা পেয়েছি। এখনও লেফট আউট আছে এবং এই নামের লিস্টটা এখানে আছে। যেমন বড় বড় কনস্ট্রাকশন আছে, ফরচুন ইনফ্রাস্ট্রাকচার, ইকো সিটি, কৃষ্ণানগর, আপনার মঙ্গলদ্বীপ প্রাইভেট লিমিটেড, আপনার ভ্যালি, বৃন্দাবন ধাম, হিন্দুস্তান রেসিডেন্সি, আনন্দধারা, আপনার অরুন্ধতী রেসিডেন্সি, অনিন্দ মাঝি কোম্পানি, নারায়ণী কনস্ট্রাকশন, এগুলোকে আমরা প্রথমবার করলাম। আর যেগুলো 2বার করেছি সে সমৃদ্ধি সিটি, সালুজা রেসিডেন্সি, শিবা রেসিডেন্সি, সারাপ সিলিকেট রেসিডেন্সি, মামা প্লাইউড ফ্যাক্টরি, বিষ্টু
রক্ষিত রিফ্যাক্টরি, অশোক রক্ষিত রিফ্যাক্টরি, শাও চাউমিন ফ্যাক্টরি, পূর্ণাচল সিমেন্ট অ্যান্ড রিফ্যাক্টরি, আচ্ছা, বিধান রক্ষিত রিফ্যাক্টরি, আপনার মনোজ মণ্ডল, সোমা দাস, বিকাশ মন্দতা নাকি মারোধা, বিকাশ মারোধা, এইরকম 24 টাইম যারা ডেভেলপ করছে তারা এডিডি এর কাছে এনওসি নিচ্ছে না। আমরা বলছি এইখানে যারা, আমরা মানুষের স্বার্থে বলছি, এইখানে যারা জমি বা ফ্ল্যাট নেবেন আপনারা দয়া করে এডিডি এর এনওসি দেখবেন। যদি এডিডি এর এনওসি না থাকে তাহলে কিন্তু পরবর্তীকালে আপনি বিপদে পড়বেন। আপনার দাগ নম্বরের সঙ্গে মিলিয়ে দেখবেন এডিডি এর এনওসি আছে কি না। ভাবছেন ডেভেলপ হচ্ছে, রাস্তা হচ্ছে, লাইট হচ্ছে, নিজেদের খরচাই করছে। আমরা WBCDকেও চিঠি দিয়েছি, আমরা ব্যাংকেও চিঠি দিয়েছি, লোন যেন তাদের পক্ষে যেন লোন পাস করা না হয়। সব সময় তো সম্ভব হয় না সবারই পক্ষে সমস্ত কাগজ দেখার। হয়তো লোনটা পাস হয়ে গেল, হয়তো লাইট জ্বলে গেল, আপনি ভাবছেন সরকারি লাইট আছে কিন্তু বাড়ির প্ল্যানটাই নেই, দেখবেন বাড়ির পর্চাটাই নেই, খাজনার রসিদ নেই, লাইট জ্বলছে। কিন্তু এই বাড়িটা আপনি যখন আবার কাউকে বিক্রি করতে যাবেন প্রয়োজনে, সে তখন সমস্ত কাগজ চাইলে আপনি কাগজ দিতে পারবেন না। তো আমাদের অনুরোধ যে এই আমরা 24টা এইরকম এজেন্সিকে আমরা নোটিশ পাঠিয়েছি যারা বেআইনিভাবে জমিগুলো ডেভেলপ করছে, সরকারকে দুবার ট্যাক্স পাঠিয়ে দিচ্ছে। প্রথমবার রায়তের কাছে জমি নিয়ে তারা কিন্তু ডাইরেক্ট যে কিনছে তাকে রেজিস্ট্রি করছে না, রায়তের জমিটার মধ্যেখানে যে মিডলম্যান সে একটা এগ্রিমেন্ট করছে, নোটারি এগ্রিমেন্ট, সেখানে সরকার একটা ট্যাক্স ফাঁকি হচ্ছে। পরবর্তীকালে জায়গাটা ডেভেলপ করার পর দাম বাড়িয়ে যে কিনছে তার কাছে প্রথম যে রায় তার সঙ্গে ডাইরেক্ট রেজিস্ট্রি করে দিচ্ছে উইদাউট আওয়ার এনওসি, প্রথমবারও ট্যাক্সটা ফাঁকি দিয়ে। তো সুতরাং এটা একটা সরকারের একটা বিপুল ট্যাক্স ফাঁকি দেওয়া একটা চক্র একটা গড়ে উঠেছে। তাই আপনাদের বলছি আপনারা এর মধ্যে ফাঁদে পা দেবেন না। আমরা নোটিশ করেছি, পরবর্তীকালে আইন অনুযায়ী কী ব্যবস্থা করা যায় সেটা আমরা আমাদের ভাবনার মধ্যে আছে। कुल्टी थाना अंतर्गत बराकर फाड़ी इलाके के जनकपुरा में काका मैदान के बगल में राजू रुईदास के घर से खून से लथपथ राजू की लाश बरामद हुई। इस घटना में कौन कौन शामिल है, एसीपी सुकांतो दास के नेतृत्व में पुलिस इसकी जांच कर रही है। राजू के मामा बजरंगी रुईदास ने कहा कि राजू की पत्नी सावित्री को राजू से परेशानी रहती थी। वो अपनी पत्नी को छोड़कर चला जाता था, लेकिन राजू की मौत के बाद भी उसकी पत्नी कहीं नहीं दिखी। क्या नाम था जो रहता यहाँ पर? लड़का का नाम था राजू। क्या करता था वो? चुनाव भट्टी में काम करता है। अच्छा अच्छा। और आधे परिवार उसको गया है नहरा 12 नंबर। बचवा को वही देखा, राज के लिए गया, गेट के पार किया वही लड़का भी। और फिर कैसे कोई जानता होगा कि उसको घर में कैसे आ जा है, तो रोज काम करता है। यहाँ रहता है? परिवार यहाँ रहता था? हाँ, परिवार रोज यहाँ रहता था, वो डेली काम करता है, सोमवार के सोमवार छुट्टी करते हैं। क्या हुआ है उसको, किसको? राजू को? अब पता नहीं बाबू, हम तो हालात सुने कि छुरी भोग के केर भाग गया, कौन भागा ठीक था नहीं तो जानते, सब अपना अपना घर में है बाबू। पुलिस आया था? हाँ तो आया था वो फोन किया बिल्डिंग से, बड़ा बाबू तो आए थे। किसी को पकड़ा उकड़ा है? नहीं पकड़ेगा किसको, तो भागिएगी है। उसका लड़का के मामू आए के बोला तो बड़ा बाबू सब दिया को भाई, पता नहीं कौन था नहीं। क्या सुने? हम लोग तो सर घर में थे, हम लोग सुने किसी मुझे चाकू मार दिया, तो हम लोग दौड़ के आए तो देख रहे गाड़ी में चपा के उनको लेके जा रहे हैं, उनका पिताजी और सर। कौन लोग था जो मारा था? मारा सर ये बता नहीं पाएंगे हम लोग क्योंकि हम लोग रहते थे ब्री डंगल, ये रहते थे यहाँ परिवार को लेके, एक बच्चा भी है परिवार को लेके यहाँ रहते थे, करीब 2-1.5 ऐसे लगभग महीना यहाँ रहने।
और ये शायद हम लोग जब दौड़ के आए तो उनको तो ले गए। उनके बाद उनका परिवार का भी थोड़ा नेचर भी उनका खराब है, समझे ना। इसका आगे भी आपका भाग चुकी थी 2 से 3 बार। उसकी पत्नी उनके पत्नी ड्यूटी के बहाना से भाग चुकी थी, फिर आई थी, फिर लड़का साथ रह गई। किस वजह से मर्डर, क्या कौन मारा, कुछ मिला खबर? नहीं सर, ये नहीं बता। मर्डर का कुछ कारण समझ में आ रहा है आप लोगों को? कारण तो ऐसे समझ में नहीं आ रहा सर। उनका पत्नी तो है ही नहीं, ये लेके क्योंकि 2 से 3 बार वो भाग चुकी थी। छोड़ तो उसका पत्नी से सुबह था बोल रहे हैं पहला कभी? हाँ सुबह था तो सभी बोल रहे, उनका बात कहाँ है, वो तो है ही नहीं। बच्चा को लेके चले गए। कितना दिन पहले यहाँ आए थे? करीब 2 महीना। 2 महीने। क्या करते हैं वो? वो क्या करते हैं राजू सर ये हाजिरी में काम करते हैं। राजू का पूरा नाम क्या है? राजू रविदास से नाम है पूरा। रहने वाला कहाँ के है वो? ब्री डांगल रहने वाले, ब्री डांगल थे, वहाँ रूम भाड़ा में रहते थे, छोड़ के। मैंने आप कौन लगते हैं उसको? हम उनका मामा हैं। राजू करता क्या है? राजू करते हैं ड्यूटी हाजिरी का। किस वजह से हुआ आपको लग रहा है ऐसा घटना कि मैंने ये तो पूरा डिटेल नहीं आप बता। बोल रहे उसके बीवी के नेचर से कहीं उस मामला कुछ नहीं बस वही सर, क्योंकि वो 2-3 बार भाग चुकी थी। हम लोग उनको समझाए भी थे, अरे बाबू उसको छोड़ दिया करो, दूसरा परिवार शादी कर लो। वो माना ने एक बच्चा है ना, बच्चा का मुंह देख के छोड़ नहीं सकता था। आपका नाम क्या है? बजरंगी रविदास। आसनसोल के फतेहपुर इलाके में 2 बसों की टक्कर में कई लोग घायल हो गए। प्राप्त जानकारी के अनुसार बराकर से एक मिनी बस आसनसोल के लिए आ रही थी। उसी समय एक बड़ी बस बराकर की तरफ से बांकुड़ा जा रही थी। दोनों बसों के बीच फतेहपुर के पास टक्कर हो गई। प्रत्यक्षदर्शी एक व्यक्ति ने बताया कि मिनी बस ने यात्री चढ़ाने के लिए अचानक ब्रेक लगा दिया, जिससे कि यह हादसा हुआ। आज भी आगे जाने के चक्कर में यह हादसा हुआ। उनका कहना था कि आए दिन इस तरह के हादसे होते रहते हैं। मिनी बसें किसी भी प्रकार की ट्रैफिक नियमों का पालन नहीं करते, जिस वजह से आज इस तरह के हादसे होते रहते हैं। घटना के कारण सड़क के किनारे लगा ट्रांसफार्मर उखड़ गया। এটা গাড়িটা আসতে ছিল না, ওই পরের বাসটা এসে নেই, পেছন থেকে ইয়ে করেছে না, মেরেছে ধাক্কা। তখন এই ড্রাইভারটা ইয়ে পুলে এসে মেরেছে, বাস ফাবড়া হয়ে পড়ে গেছে সবাই। তো পিছনে বাসটা স্পিডে ছিল নাকি? হ্যাঁ স্পিডেই ছিল। কত লোক এমন ঘায়ল হয়েছে? ঘায়েল তো হয়েছে, আমি অতটা আমার নিজেই হোশ নাই, আমি বাবার মতন পড়ে আছে এদিকে, আর কে কে পড়েছিল তাদেরকে তো হসপিটাল নিয়ে গেল। শুনে পাচ্ছি চুরি। হ্যাঁ হয়েছে। যারও টাকা ছিল, কারো মোবাইল ছিল, পাওয়া গেল না। আমার এই ভাতের টিফিনটা ছিল, তো ওই ড্রাইভারের ইয়েতে গিয়েছিল না, হ্যান্ডেলের কাছে ছিল, আটকে গেল। সামনেই ছিল আমি। ড্রাইভারের কিছু হয়েছে? ওইটাও বলতে পারছি না আমি। সবাই তো আনচান হয়ে গেছে, সবাই তো অভাব হয়ে আপনি গেছে। কোথায় থেকে কোথায় যাচ্ছিলেন? আমি নামতপুর থেকে আসছি, এই ইয়ে বিএনআর যেতাম। বিএনআর। আপনার নাম? আমার নাম নির্মলা ওরাং। वो अचानक वो बस ओवरटेक करने के चक्कर में पीछे से इसको मार दिया बस। मैंने तो यही देखा, क्योंकि मेरी आंखें तो बंद हो गई थी जब एक्सीडेंट हुआ था। अच्छा जी कितने लोग घायल हुए ऐसा? मैं नहीं बता सकता, क्योंकि मैं बस में था। मैं बस मुझे चोट लगी, मैं यहाँ लाके बैठ गया। मैं बता नहीं सकता कितने लोग घायल हुए। लगभग ऐसे अंदाज? मैं कैसे बता सकता, फिर भी 10 लोग हुए होंगे। ये बस काफ़ी रफ्तार में था क्या ये पीछे? मैं कैसे बताऊँ, लेकिन मेरी आंखें बंद हो गई थी जब एक्सीडेंट हुआ था, तो मैं नहीं बता सकता। लेकिन एक्सीडेंट हुआ था, मैं आसनसोल जा रहा था। कहाँ से आ रहे हैं? मैं कुल्टी से आ रहा हूँ। आपका नाम? निर्मल पांडे। आसनसोल दक्षिण थाना अंतर्गत रेलवे कॉलोनी परिसर में सेंट जोसेफ स्कूल के प्राइमरी सेक्शन के निकट एक व्यक्ति की जली हुई लाश मिलने से सनसनी फैल गई। आज सुबह जब स्थानीय निवासियों की नज़र इस लाश पर पड़ी तो आनन फानन में पुलिस को खबर दी गई। पुलिस घटना की जानकारी मिलते ही घटनास्थल पर पहुंच गई और मामले की जांच में जुट गई। लाश के पास एक साइकिल भी मिली। समाचार लिखे जाने तक मृतक की पहचान नहीं हो पाई थी। बच्चा को अपना छोड़ने आए ना यहाँ, तो वहाँ पर बोला गया कि एक आदमी जला हुआ, तो वही चोल देखे। कुछ पता चला कि कौन आदमी है? नहीं हमको तो उसको चाहिए, हमको क्या मालूम। तो कुछ जलाया है ना, जला हुआ? ये तो हम बोल नहीं सकते हैं। उसके पास में और कुछ है क्या? एक साइकिल रखा हुआ देखे। पुलिस आई है घटना में? हाँ के बगल में एक रेलवे क्वार्टर है वहीं पर ही
साइड में, एक जंगल के साइड में एक लड़का पूरा जला हुआ मिला। पुलिस आई अभी, फिर लेके चली गई। क्या लगता है यहाँ नशा वशा वाला कुछ हुआ था? हाँ, कुछ नशा वशा होगा, चाहे आगुन उगुन तापता होगा। लगता उसी से आगे पड़ा है, बस आगे जला हुआ रहे, पूरा शरीर काला हो गया रहा। नहीं 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 नहीं, हाँ 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 हाँ, नहीं नहीं, वो ऐसे खाली लेटा हुआ है, पड़ा हुआ है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हो गया जगदीश चंद पुंज। বললো ঠিক আছে, পুলিশের কনফার্ম করে দেবে, মিডিয়াওয়ালা কোনো এসেছিল, ওরা ফোন করলো। হ্যাঁ, বললো ওরা বড় বাবু আসছে, আর আমরা জানি না। হ্যাঁ, ওই ডেড বডি ওইরকম পড়া ছিল, বাস ওইরকম পড়েছিল। হ্যাঁ, আগুনে পুড়ে পড়া ছিল। না, ওর কাছে আমি কিছু কেয়ার করিনি, দেখিনি, আমি দেখিনি। সাইকেলও কেয়ার করিনি, সাইকেলও দেখিনি, আমি এক ঝালক দেখলাম, চলে আসলাম। এই জায়গাটা কি নেশা যারা করে তারা ওখানে খুব আড্ডা ফাড্ডা মারে নাকি? যারা নেশা করে? হ্যাঁ, এ তো ওইদিকে নেশা ফেশা করে, ওরা আড্ডাবাজি করে, এদিকে আড্ডাবাজি ফাজি করে ওই সাইডে। और हम लोग हम तो करीब हम आया 7:30 पौने 8 बजे हम करीब आया, तो हम गेट अभी खोलेंगे तब तक वहाँ देखे 4-5 जन खड़ा लेटरिन वेटरिन करने जाता है। वही लोग हमको बोला ऐसा बात, बोलो যে একটা ডেড বডি পড়ে আছে, পুড়িয়ে দিয়েছে কেউ। হ্যাঁ, আমি বললাম গিয়ে দেখলাম, দেখে আমি চলে আসলাম ফিরে, বাস আর কিছু জানি না। नहीं, कोई नहीं आया, अभी तो आया, तो अभी तो आप लोग का साथ में तो आया पीछे में। কি নাম তোমার? हाँ, हमार नाम হচ্ছে एंटोनी। अभी वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, बने रहिए हमारे साथ। हिलव्यू हॉस्पिटल, a multi-speciality hospital with ICU and dialysis unit. हिलव्यू हॉस्पिटल में ऑर्थोपेडिक, न्यूरोसर्जन, जनरल फिजिशियन, ऑन्कोलॉजिस्ट, चाइल्ड स्पेशलिस्ट, गायनेकोलॉजिस्ट, होम्योपैथी सहित 15 विभागों के विशेषज्ञ चिकित्सकों द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है। हमारे यहाँ आपको मिलेगी कैशलेस इलाज की सुविधा। इसके अलावा अत्याधुनिक ICU, NICU, डायलिसिस यूनिट, ट्रॉमा केयर सहित हर वो सुविधा मिलेगी जो हिलव्यू को बनाती है सही मायनों में एक मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल। हमारे यहाँ स्वास्थ्य साथी कार्ड पर भी इलाज उपलब्ध है। हिलव्यू हॉस्पिटल, हमारा पता SB गोराई रोड, नियर आसनसोल कोर्ट, श्रीपल्ली कालीबाड़ी, इंडियन ऑयल पेट्रोल पंप के विपरीत। मोबाइल नंबर 9046007833, 9046007834। आपके मकान को बनाए आपके सपनों का आशियाना, डेकोर वॉलपेपर। लजीज खाने के शौकीन लोगों के लिए अच्छी खबर, आसनसोल के SB गोराई रोड स्थित सुकांतो मैदान के सामने खुल गया है द जायका फास्ट फूड रेस्टोरेंट। आज आसनसोल के GT रोड के किनारे शनि मंदिर के निकट एक सड़क हादसे में ऑटो में सवार 3 व्यक्ति घायल हो गए। घायलों को स्थानीय लोगों की मदद से आसनसोल जिला अस्पताल इलाज के लिए भेजा गया। घटना के बारे में प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि एक ऑटो ने सामने से एक कार को टक्कर मार दी, जिससे यह हादसा हुआ। घटना के तुरंत बाद स्थानीय लोगों ने ऑटो में सवार व्यक्तियों और ऑटो चालक को बचाया और इलाज के लिए आसनसोल जिला अस्पताल भिजवाया। एक ऑटो वाला ने आके सामने से क्रेटा गाड़ी था उसको मार दिया, सामना सामनी। 3 आदमी इंजर्ड हो गया, ड्राइवर को चोट लगा, 2 लेडीज़ हॉस्पिटलाइज्ड है बस।
आप लोग उस समय दौड़ के गए थे? हाँ, हम लोग गए थे, उठाए उसको, उठा के फिर हॉस्पिटल भेजे। उसके बाद हम तो दुकान में थे, दुकान चला रहे, लेकिन हेल्प किए। पुलिस पहुंची थी? हाँ, पुलिस लेट से आई। आपका नाम? नितेश मंडल। साइकिल वाला को मार के ऑटो वाला पलटी मार दिया। उसमें यात्री था? हाँ, दो लेडीज था, एक तो बच्चा थी यार, एक तो आपका हाँ लगा उन लोग को पैर में, हॉस्पिटल गया है। और ऑटो वाला ड्राइवर को भी लगा है कान में, शायद वो भी हॉस्पिटल गया। पुलिस पहुंची थी? पुलिस पहुंची थी। किसकी गलती थी देख के लगा? गलती तो ऑटो ही वाला का है। किससे भी लगा है एक्सीडेंट? ऑटो ही वाला पलटी मार दिया आकर के कार वाला का सामने, 4 चक्का वाला गाड़ी वाला का सामने मारा। आपका नाम बताओ? निसार, मोहम्मद निसार। तो अभी आप देख रहे थे आसनसोल और आसपास के इलाके की कुछ महत्वपूर्ण खबरें। हम रोज आप तक शिल्पांचल की महत्वपूर्ण खबरों को पहुंचाते रहेंगे और अगर आपको हमारे इन खबरों से बाखबर रहना है तो आपको करना होगा एक छोटा सा काम। आपको हमारे चैनल आसनसोल टाइम्स को सब्सक्राइब करना होगा और पास में दिए गए बेल आइकन को प्रेस करना होगा, ताकि जब भी हम कुछ नया नई खबर या कुछ नया पोस्ट डालें तो इसकी खबर आप तक पहुंचे और आप इन गतिविधियों से बाखबर रह सकें। इसके अलावा आप हमारे वेबसाइट www.asansoltimes.co.in पर लॉगिन भी कर सकते हैं और वेबसाइट के जरिए और हमारे पोर्टल के जरिए शिल्पांचल की हर छोटी बड़ी गतिविधियों से बाखबर रह सकते हैं, उनकी जानकारी हासिल कर सकते हैं। आज के इस बुलेटिन में इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात। नमस्कार। हमारा अपना शहर आसनसोल, इसे स्वच्छ और निर्मल रखने की जिम्मेदारी हमारी है। आसनसोल पौरसभा শহরকে সুন্দর এবং নির্মল করতে বদ্ধপরিকর। পৌরসভার এই চেষ্টায় সুনাগরিক হিসেবে আমাদেরও কিছু কর্তব্য আছে। यहाँ वहाँ प्लास्टिक फेंकना और थूकना, गंदगी फैलाना, ऐसी कुछ आदतें हैं जिनका त्याग करना हमारे साथ साथ हमारे शहर के स्वास्थ्य के लिए भी बेहद जरूरी है। তাই আসুন আমরা প্রতিজ্ঞা নিই, যেখানে সেখানে আবর্জনা ফেলবো না, ধূম্রপান ত্যাগ করব, শহরকে দূষণ মুক্ত করতে গাছ লাগাবো और अपने शहर आसनसोल को बनाएंगे स्वच्छ, सुंदर और निर्मल। आसनसोल नगर निगम द्वारा जनहित में जारी।